Namaskar. Welcome to Hello Ganit. We will discuss zero of polynomial. What is the meaning of zero of given polynomial? Let us suppose px 4x minus 8. It is the polynomial of first degree. ये फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल है, तो जीरो का क्या मीनिंग है? तो वी पुट वैल्यू ऑफ x इन दिस पोलिनोमियल लाइक p1 4 minus 8 minus 4 not equal to 0, x equal to 1. क्या मीनिंग हुआ कि हम x का वैल्यू जो है 1 पुट किए इस गिवन पोलिनोमियल में, रिजल्ट क्या आया? -4 नॉट इक्वल टू 0. अब x इक्वल टू 2, p2 8 minus 8 and that is 0. The when we put value of x equal to, it gives 0. The x equal to 2 is the zero of given polynomial. मतलब कि जिस वैल्यू को हम पुट करते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ x polynomial gives 0, that value is called zero of given polynomial. ओके, कि ये फर्स्ट डिग्री का था पोलिनोमियल, x का एक ही वैल्यू होगा, हम जो पुट किए और जो जीरो दिया इसको कहे इस पोलिनोमियल का जीरो. अब मान लीजिए, लेट अस सपोज पोलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री px x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. इट इज द पोलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री. वी पुट value of x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3 and trial and error methods कि और इंस्पेक्शन मेथड कि हम x का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि जीरो कहाँ पर हमको मिलता है. जहाँ पर जीरो मिलेगा कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल गिव्स जीरो, द डेट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल. तो हियर x equal to 2, the p2 2 square 5 into 2 6 4 minus 10 plus 6 0. That is x equal to 2 is the zero of given polynomial. And next x equal to 3, p3 3 square 5 into 3 plus 6 9 minus 15 plus 6 0. Here second degree, in second degree polynomial how many zero? So there are 2 zeros. First degree, first 1 0, second degree 2 zeros, third degree 3 0. तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 सेकेंड डिग्री का ही पढ़ रहे हैं. तो इसका मतलब है कि अगर सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल होगा तो वहाँ 2 जीरो मिलेंगे, फर्स्ट डिग्री में 1 जीरो मिलेंगे. ये फंडामेंटल रूल्स है. तो अब समझ में आ गई बात कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज. तो द वैल्यू ऑफ x विच गिव्स वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज जीरो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल. ओके, कि जिस वैल्यू पर हमको उस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो मिलता है उसी को हम लोग जीरो कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, in first degree polynomial x equal to alpha, we put p alpha equal to 0, alpha is called zero of the polynomial.
In second degree, there are two zeros, alpha and beta. The P alpha is 0 and P beta equal to also 0. ठीक है? Again we define what is the relation between zeros and coefficients in second degree polynomial. Okay? Relation between the zero and coefficient of quadratic polynomial. Px is any polynomial ax square plus bx plus c where a equal to not 0. Quadratic polynomial है. Let us suppose two zero are alpha beta. We suppose कि alpha beta are two zero. So we can write ax square plus bx plus c equal to k into x minus alpha into x minus beta, where k is any constant. We multiply k x square minus alpha plus beta x plus alpha beta, kx square minus k alpha plus beta into x plus alpha beta. In left side, ax square plus bx plus c. Now we compare coefficient of x square, coefficient of x and constant in both side. मतलब कि जो हम लोग रिलेशन निकाले तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल है, इसका दो जीरो है मान लिए हम, तो जब जीरो होंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं इस तरह. नाउ कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x और k अल्फा बीटा. तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन लेफ्ट साइड a एंड राइट साइड k, तो k इक्वल टू a कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अगेन कोफिशिएंट ऑफ x, तो इन राइट साइड माइनस k अल्फा प्लस बीटा और इन लेफ्ट साइड b, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई k, वेयर k इक्वल टू a minus b by a. Again left side c and right side k alpha beta, तो k alpha beta equal to c, alpha beta c by k, c by a. So there is the two relations. There are two relations. Alpha beta, what is alpha beta? The alpha beta are the zero of quadratic polynomial. So this alpha beta means sum of two zeros और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो. तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो c बाई a. व्हाट इज c? तो c इज द कांस्टेंट और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, और सम ऑफ जीरोज माइनस b. व्हाट इज b? तो b इज कोफिशिएंट ऑफ x and a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, इसको आप नोट कर लें कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस व्हाट इज बी? बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा c बाई ए, c मीन्स कांस्टेंट and a coefficient of x square. So there are two relations between zeros and coefficient of polynomials. ये दो तरह का रिलेशन था कि अगर दोनों कोफिशिएंट का और जीरो का क्या रिलेशन होगा, तो इसी को हम लोग अगले चैप्टर में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो पुनः इसको दोहराएंगे